स्टूडेंट बिफोर वी कंटिन्यू एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को जो अभी तक हमने की हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी ड्यूल नेचर मतलब होता है टू बिहेवियर्स, और दो बिहेवियर्स से मेरा मतलब होता है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थी कि मेटल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर और अगर हाँ जी बोलिए। सर नहीं, बस ये देख रहा था मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वो सरफेस के ऊपर ही हैं, सरफेस को छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। अब स्टूडेंट वो मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस एनर्जी कॉल्ड? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। करेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के वो जो चार प्रोसेसेस के नाम पड़े थे वो प्रोसेसेस के नाम बता दीजिए बस। थर्मल एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो फील्ड एमिशन, एमिशन, फोटो एमिशन। थर्मल एमिशन, एंड फील्ड सेकेंडरी एमिशन, फोटो एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। बेटा इसमें फोटो एमिशन क्या होता है? व्हाट इज फोटो एमिशन? emission by giving the energy of different frequencies. और कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम वर्क फंक्शन हमें किसका दिखाई दिया है अभी तक? सर प्लेटिनम का। Platinum. कितना कितना? सर 5.65 EV। और मिनिमम? Cesium. सर सीजियम सीजियम कितना? 2.14 2.14 2.14 eV। electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो गुड। अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ रिसर्चर्स के नाम पढ़ेंगे जिन्होंने फोटो एमिशन में वर्क किया है। उन रिसर्चर्स के नेम्स याद हैं? आइंस्टाइन, प्लैंक, Hallward, Leonard, Hallward, D. Broglie, लिनार्ड वेरी गुड, हर्ट्ज गुड। चलिए राघव यस सर। बेटा अपने नोटबुक, अपने जो नोट्स हैं उसको ओपन करिए और उसका पहला पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोडक्शन को रीड करिए। Yes, sir. The Maxwell equation of electromagnetism and Hertz's experiment on production and detection of electromagnetic waves established the wave nature of light. The discoveries of photoelectric effect by Einstein, Compton effect by Compton established the particle nature of light. Hence, it was concluded that light has dual nature. बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ये बात लास्ट टाइम भी की थी कि लाइट की ड्यूल नेचर होती है। द मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ डिटेक्शन of electromagnetic wave establish wave nature, and photoelectric effect by Einstein Compton effect of discover particle nature of light, and hence it is concluded that light has dual nature। हमने ये बात लास्ट टाइम पे की थी। साहित्य Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़िए। In metals, the electrons in the outer shells, valence electrons, are loosely bound to the atoms. Hence, they are free to move easily within the metal surface but cannot leave the metal surface.
Such electrons are called free electrons. These free electrons can be emitted in the metals if they have sufficient energy to overcome the attractive pull of the metal surface. The phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal is called electron emission. The required energy for the electron emission can be supplied to the free electrons by any one of the following physical processes. Th- Thermonic emission. Sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons by suitable heating so that they come out of the metal. Field emission or cold cathode emission. It is the phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal by applying a very strong electric field, nearly 10 to the power 8 volt per meter to a metal. Electrons can be pulled out of the metal a- as in a spark plug. Photoelectric emission. It is the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal when light radiations of suitable frequency fall on it. Here the energy to the free electrons for their emission is being supplied by light photons. The emitted electrons are called photoelectrons. Secondary emission. It is the phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal in large number when fast-moving electrons called primary electrons strike the metal surface. ओके फ्रेंड, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रकृति, Yes, sir. प्रकृति बेटा वर्क फंक्शन को पढ़िए. Yes, sir. It is the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the attractive pull of the ions. It is generally denoted by phi naught and measured in EV electron volt. It depends on the properties of the metal and the nature of its surface. The value of the work function of some metals are given below. आपको सारी याद नहीं रखनी, सिर्फ दो की याद रखनी है, सीजियम एंड प्लेटिनियम. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट, अब आप लोग खुद अभी फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. राघव, राघव Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए एंड टेक 30 सेकेंड्स टू ट्राई द क्वेश्चन. एवरीबॉडी, यस, पढ़िए. So example 1 na. जी. Monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to the power 13 hertz is produced by surface. The power emitted is 2 into 10 raised to the power minus 3 watt. First, what is the energy of photon in the light beam? Second, how बस many बस photon? बस बस बस. पहला उसने कहा है कि एनर्जी बताइए, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप होता है E इक्वल टू एच न्यू. तो आपको एच की वैल्यू पता होती है. एच की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, बेटा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? लिख लो कहीं नोटबुक में. 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है. नाउ एच इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं. यस, सेकंड पढ़िए. Yes, sir. How many photons per second on an average are emitted by the source? Given h is equals to 6 into 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule per second. स्टूडेंट, ये जो पावर हम लोग लिखते हैं n टाइम्स ऑफ E, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर लॉजिक है. देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड. पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, एनर्जी की यूनिट होती है जूल. तो अगर मैं पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो यहां पे मेरे पास पर सेकेंड ही आ जाएगा. दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, प्योर लॉजिक है. तो आपको यहाँ पे पावर गिवन है क्वेश्चन में, एनर्जी आपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाली है, सो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग. क्या मेरी बात समझ आई? यस और नो? Yes, अरे sir. यस Yes, और sir. नो? Yes, sir. सर ये नंबर ऑफ फोटॉन समझा दो कि क्यों हमने वो क्यों लिखे.
द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम की वो बात कर रहा है, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में। बच्चों ध्यान से सोच, यूनिटरी मेथड, आपके पास एक फोटॉन जब हिट करता है तो लेट अस से 20 जूल एनर्जी है एग्जांपल, तो अगर 10 फोटॉन्स हिट करेंगे तो कितनी होगी, इनटू 10, यही बात होगी ना। हाँ जी सर। मैं भी वही कह रहा हूँ, देख पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। तो सर एक बार एक फोटॉन इक्वल टू एच न्यू का मतलब होता है एक फोटॉन की एनर्जी। सर एक फोटॉन की एनर्जी हमने निकाली है इक्वल टू एच न्यू से, तो टोटल एनर्जी मतलब पावर आपको गिवन है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सर अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। हाँ जी सर। चलिए कैलकुलेशन पार्ट घर पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट इशिता। इशिता Yes, sir. Am I audible? ये सेकंड एग्जांपल को पढ़िए। Yes, sir. The momentum of photon of electromagnetic radiation is 3.3 into 10 to the power minus 29 kilogram meter per second. What is the frequency and wavelength of the waves associated with it? Given h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per second. स्टूडेंट्स क्या हमें पता होना चाहिए कि ई का फॉर्मूला mc स्क्वायर होता है। Yes? Yes, sir. क्या हमें हाँ ये भी जी पता सर। होना चाहिए कि फॉर्मूला एच न्यू भी एच एफ या एच न्यू भी होता है जिसे हम एच सी बाय लैम्डा के नाम से भी लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अच्छा दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास अच्छा ई इक्वल टू एम सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, और एम सी मतलब मोमेंटम इंटू सी, सर ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो सर पी मोमेंटम, सी स्पीड, एच सी बाय लैम्डा, सी ने सी को काट दिया तो पी का मतलब एच बाय लैम्डा कहा जा सकता है। अब सर आपको पी गिवन है, लैम्डा निकालना है, समझ आई बात। फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। सर लैम्डा आ गया तो स्पीड का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन टाइम, तो आपके पास लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है। देखो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर आपके पास लैम्डा आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना। दर्पण, दर्पण Yes, sir. बेटा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को रीड करिए, ओनली द डेफिनेशन पार्ट। Yes, sir. It is the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal when radiations of suitable frequency fall on them. The emitted electrons are called photoelectrons, and the current so produced is called photoelectric current. बच्चों आपके पास जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी वो लाइट बाहर आएगी, तभी वो फोटो एमिशन बाहर आएंगे, अदरवाइज फोटो एमिशन बाहर नहीं आएंगे। और उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उसे कहते हैं फोटो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं फोटो करंट। क्या ये टर्म्स क्लियर है। सर रेडिएशन का मतलब क्या होता है? बेटा रेडिएशन मतलब बाहर निकलना, सरफेस से बाहर निकलना कुछ। ठीक है सर। चलिए क्या मैं एग्जांपल 2 इरेज कर दूं। हाँ जी सर। ओके फाइन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं
बच्चों अर्ली टाइम पे ना ये माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ हम सन से ले सकते हैं। अर्लियर ये माना जाता था ओनली सन इज अ सोर्स ऑफ EM वेव्स, बस और कुछ नहीं। हर्ट्ज ने फर्स्ट सक्सेसफुली EM वेव्स प्रोड्यूस की थी इन लैब्स। बेटा EM वेव्स की फुल फॉर्म बताना क्या होती है? Electromagnetic Electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट। इलेक्ट्रो मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक मतलब जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में परपेंडिकुलर चल रही होती है। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसका क्या मतलब है सुने ध्यान से। जैसे आपके पास अपने हैंड्स को ऐसे करना, एक बार अपने हैंड्स को ऐसे करो। नाउ स्टूडेंट, क्या आपका ये वाले हैंड का प्लेन और ये वाले हैंड का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रिक वेव इस वाले में चल रही है, आपके हैंड की यहां चल रही है, तो मैग्नेटिक इस वाले प्लेन में चल रही है। जैसे मान के चलो कि दो इंसेक्ट्स हैं, एक इंसेक्ट आपके इस वाले हाथ पे चल रहा है और एक इंसेक्ट आपके इस वाले हाथ पे चल रहा है, तो दोनों इंसेक्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसे ही होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती है। अगर इलेक्ट्रिक ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक ऐसे चल रही है। क्या बात समझ आई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर टू ईच Yes. अदर का मतलब, बात समझ आई? एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं। इंटरसेक्ट भी करते हैं। आपके पास जहां पे यहाँ पे प्लेन पे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ जहां पे नोड्स बनेंगे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये वाली वेव कैसे चलेगी, अगर ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, तो जहां पे इसका नोड होगा वहां पे इसका नोड होगा। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, इन वैक्यूम EM वेव की स्पीड कितनी होती है? थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी एक चीज, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? परमिटिविटी। permittivity, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। और इसे क्या कहते हैं? permittivity, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। नाउ ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ आता है। ठीक है, एक हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी पढ़ते हैं, दैट इज E0 बाय B0 इक्वल्स टू C। E0 B0 क्या है? इलेक्ट्रिक। पीक वैल्यू, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, और B0 क्या है? मैग्नेटिक वेग।
जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस 2 पाई/लैम्डा एक्स प्लस या माइनस अल्फा, और मैग्नेटिक की होती है बी नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस 2 पाई/लैम्डा प्लस या माइनस अल्फा। ठीक है, लिख लो ये सारी बातें। और पहले ये माना जाता था कि ये सब चीजें हमें सिर्फ सन से मिल सकती है, सन की वेव से। हर्ट्ज पहली बार थे जिन्होंने सक्सेसफुली ये सारे करेक्टरिस्टिक्स लैब में प्रोड्यूस किए थे। पहले लिखो इसे। जी बच्चों, क्या आपने लिख लिया? नो सर। सर 2 मिनट। जी स्टूडेंट्स, इज इट डन नाउ? नो सर। सर जी सर ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, ये समझ नहीं आया। बेटा, ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ध्यान से देखो, याद करो। इलेक्ट्रो, जब हम मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, मतलब QVB इक्वल्स टू क्यू ने क्यू को काट दिया तो V कितना आ जाता था, E/B। याद आया? ओके नाउ स्टूडेंट, क्या बच्चे में पूरा बोर्ड इरेज कर दूं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो, मैं इरेज कर दूं, यहाँ वेट पे करूं? एक्स क्या है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में? ये पार्ट डिफरेंस, ये तो ओके 11th सर। क्लास की क्वेश्चन है ऑसिलेशंस में। 2 पाई/लैम्डा एक्स पार्ट डिफरेंस इनिशियल फेज, है ना? चलिए हाँ जी। सर ये मैं इक्वेशंस रिवाइज करवा दोगे, इनकी याद नहीं मुझे। कौन सी इक्वेशंस? से जो जनरल इक्वेशंस सिखानी है। 11th वाली? यस सर। ओके, सर ये 11th में डिलीटेड था क्या? बिल्कुल नहीं, ऑसिलेशन का पहला टॉपिक ही यही था, जनरल इक्वेशंस।
जो हमने जनरल इक्वेशंस ऑसिलेशन का पहला टॉपिक था, वो तो अलग थी शायद। बिल्कुल नहीं थी, वो यही थी। उसमें हम ए आर साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई/लैम्डा एक्स ही निकालते थे। और स्टूडेंट अभी रिसेंटली मैंने 11th क्लास में यही बच्चों को करवाई भी है। आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली, अब बच्चों का वेव्स टॉपिक चल रहा है। ओके, हर्ट्ज ने कैसे प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेबोरेटरी में? उन्होंने क्या किया था, एक प्लेट ली, मेटल की प्लेट, मेटल की प्लेट ली, मेटल, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वेव डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से हमने, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी, बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस डाल दी, मतलब कंट्रोल्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डाली। और यहां पे एक वेव डिटेक्टर रखा कि कौन सी वेव निकलती है, चेक किया जाए। तो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव डाली, और वेव डिटेक्टर ने डिटेक्ट की ईएम वेव्स। तो पहली बार हर्ट्ज ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना हमें सिखाया था। ठीक है, हो गई प्रोड्यूस। अब क्या किया जाए? यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, हर्ट्ज ने क्या किया, इसे मेटल की सरफेस पे डाल दिया, मेटल की सरफेस पे डाला, और मेटल की सरफेस पे डालते ही इन्होंने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो पहली बार इन्होंने सक्सेसफुली हमें यह बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो, सुटेबल इंटेंसिटी हो, बेटा इंटेंसिटी का मतलब याद है क्या? बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये वर्ड पहली बार कहां पढ़ा था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये वर्ड कहां पढ़ा था बच्चों पहली बार? सर वेव ऑप्टिक्स। नहीं, पहली बार कहां पढ़ा था? केमिस्ट्री में। नहीं, 11th क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था। हाँ जी सर, वो एक होता था। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था, है ना? इसकी हाँ जी यूनिट क्या सर। होती थी? इसकी यूनिट क्या होती थी? सर वो याद नहीं। बच्चों, कैंडेला, याद है कुछ? हाँ जी सर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता था? कुछ याद नहीं है तुम्हें? लाइट की पावर। नहीं, कुछ भी बोली जाते हो। 9th क्लास का बच्चा बोले ना तो अच्छा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता था नंबर अमाउंट ऑफ ऑफ लाइट। फोटॉन, रुक जा, फोटॉन्स स्ट्राइकिंग
ये बेटा ये तुम लोगों ने क्लास 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डेफिनेशन, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर ये एक मेटल की सरफेस है या कोई भी सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है मतलब क्या, लाइट के फोटॉन्स गिर रहे हैं, फोटॉन्स। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों, याद रखो 2 साल का सिलेबस। फोटॉन्स गिर रहे हैं तो इसके एक यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स गिरे 1 सेकंड में, उसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहा जाता था। कुछ याद आ रहा है? बेटा कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes. Yes, sir. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता था जब लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक होती थी। अब हर्ट्स ने कहा कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल इंटेंसिटी जब स्ट्राइक होती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है सर, आपके पास यही हर्ट्स की एक्टिविटी थी नमित। यस नमित सर। बेटा हर्ट्स ऑब्जर्वेशन को पढ़ो। हाँ जी सर। In 1887, Hendrik Hertz discovered the phenomena of photoelectric emission while working with his electromagnetic wave experiment by means of spark discharge. Hertz observed that high voltage sparks across the detector loop were enhanced with the emitter plate with illuminated by ultraviolet light from the arc lamp. It was accounted as follows. When suitable radiations fall on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the incident radiations to overcome the attraction of the positive ions in the material of the surface and escape from the surface of the material to the surrounding space. बस लिख लो ये सारी बातें, हर्ट्स की एक्टिविटी। फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे। सर लेकिन सन कैसे दे रहा है EM waves? बेटा सन से जो रेस निकल रही हैं, लाइट, इंफ्रारेड, यूवी, ये सब ईएम वेव्स ही तो हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम थोड़ी चाहिए, वो तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करके आती हैं, स्पीड ऑफ साउंड, हाँ स्पीड ऑफ जी। लाइट से चलती हैं, है ना? ओके सर। चलिए स्टूडेंट, क्या बोर्ड से लिख सर लिया हर एक बात? जी आपने भी पैराग्राफ लिखने को बोला अभी? नहीं नहीं, सिर्फ ये जो बोर्ड है वो लिखना है, वो तो लिख लिया। पैराग्राफ थोड़ी लिखना है। जी क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes. हाँ जी सर। ओके अच्छा, नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए, हॉलवाच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए हॉलवाच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या लिखना है बताता हूं बेटा। हॉलवाच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल दी? सर एक सेकंड। सिर्फ हेडिंग डालना, हॉलवाच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। लिख लिया सर। ओके अब पेज नंबर 4 पे एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को बनाओ पहले, सिर्फ जो डायग्राम है उसे बनाओ और कुछ नहीं। ये क्या डायग्राम है अभी बताता हूँ बेटा, इस डायग्राम को बनाइए सिर्फ। सर पहले वाला डायग्राम ना? जी, जो पेज नंबर 4 पे सबसे ऊपर डायग्राम है, नोटबुक में बनाइए। क्योंकि आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो ये हॉलवाच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन पूरी समझ आ जाएगी। देखते हैं कौशव, कौशव,
कौशव, आप कभी अपना माइक अनम्यूट नहीं करते हैं। कौशव, if you can hear me, reply in chat. स्टूडेंट, बैटरी की पोलैरिटी इधर नेगेटिव बनाना, इधर पॉजिटिव बनाना, उसका रीजन है। ऐसे ही अपने मन से किधर भी मत बना देना। ओके जी, आपने डायग्राम बना लिया, लेबलिंग कर ली। Sir, 1 minute. लेबलिंग भी करेंगे पूरी। हो गया? Yes, sir. चलो, अब हॉलवाच और लिनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था, देखो। सबसे पहले तो कुछ चीजें समझते हैं कि यहाँ से यूवी रेस क्यों डाली जाती थी, और कोई क्यों नहीं डालते थे। और भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूवी ही डालनी है, और भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यूवी रेज इसलिए डालते हैं क्योंकि यूवी रेज की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई एनर्जी होती है, जिस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट आसानी से हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग यूवी डालते हैं। ठीक है सर। अब यहां से जब हमने यूवी रे डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा, यूवी रेज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी हमने डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा। अच्छा सर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी स्कैटर कर सकता है इस ट्यूब में, जरूरी थोड़ी है कि वो यहाँ पहुंचेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग नेचर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मूव करेगा। जरूरी तो है ही नहीं कि वो यहाँ पे पहुंचेगा एक्सेप्टर प्लेट के पास। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये यहाँ पहुंचे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने छोटी सी बैटरी लगाई। सर, इतनी बड़ी बैटरी है, छोटी थोड़ी है बेटा। ये छोटी बैटरी हम लगाते हैं, और इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए ही हम यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अच्छा सर, इस छोटी बैटरी का क्या काम होता है? और मैंने आपसे
देखो ध्यान से सोचो, मैंने आपसे कहा था कि इधर नेगेटिव रखना, इधर पॉजिटिव ही रखना, मैंने ऐसा बोला था। इसका रीजन ये था कि सर जब आप यहाँ के नेगेटिव को रखोगे और ये वाला नेगेटिव यहाँ से टच करवाओगे और यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, इस पॉजिटिव को यहाँ टच कराओगे, तो सर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा अट्रैक्ट होते होते इसके पास आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? और इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव से रिपेल होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चलते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और इधर उधर कहीं स्कैटर नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? सर ये छोटी बैटरी वाला क्या बोले समझिए। आपको ये जो इतनी बड़ी बैटरी दिख रही है ना, ये एक्चुअली में हम लोग इतनी सी छोटी सी बैटरी यूज करते हैं, बहुत हाई लार्ज बैटरी यूज नहीं करते, छोटी बैटरी यूज करते हैं। यहाँ पे क्यों बड़ी दिखाई है, यहाँ पे बड़ी क्यों दिखाई है, उसका रीजन है, अभी आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। सर यहाँ पे छोटी बैटरी का रोल क्या होता है? इस छोटी बैटरी का सिर्फ एक ही रोल होता है कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन दे देना, एक गिवन डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना, बस इतना ही रोल होता है इसका, और कोई रोल नहीं होता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन मिले सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो माइक्रो एमीटर ने रीडिंग देनी शुरू कर दी, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया है और माइक्रो एमीटर रीडिंग दे रहा है, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो हॉलवाच और लिनार्ड को ये बात पता चल गई कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। क्या यहां तक क्लियर है बात? यस सर। अब सुनते हैं अगली बात जो लिनार्ड ने ऑब्जर्व करी, जो हॉलवाच ने ऑब्जर्व करी, और सुनते हैं। स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी, बहुत कम। तो उन्होंने देखा कि यहां से फोटो एमिशन आने बंद हो गए। अच्छा, यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट पे रखी, उन्होंने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने यूवी रेज की कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है। क्या मैंने सही बोला? यस सर। यस सर। तो पहली बार हमें समझ आया कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ताकि इसमें से फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सके, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बाद में नाम दिया गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। जब वो फ्रीक्वेंसी को कम कर देते थे तो एक लिमिट के बाद इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाते थे, उस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते थे। ये लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो इसका मास बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम। इनर्शिया बहुत कम। कम। और स्टूडेंट, क्या हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में? क्या 3/2 kBT काइनेटिक गैस थ्योरी के अंदर? केबी मतलब बोल्ट्जमैन को। तो अगर रूम टेम्परेचर भी होगा, रूम टेम्परेचर भी होगा, तो भी ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। और सर काइनेटिक एनर्जी आपके पास अगर गेन कर लेते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बैटरी हटा दूं, लिनार्ड ने एक बार बैटरी हटा दी और अब भी वो देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर रीडिंग दे रहा है, थोड़ी सी दे रहा है, चाहे बहुत माइन्यूट सी दे रहा है, लेकिन दे रहा है। अब लिनार्ड को ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बैटरी बंद कर दी, यूवी रेज आप दे रहे हो, स्कैटर कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। चलो समझ आ गया कि यूवी रेज की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अगर आपने बैटरी बंद भी कर दी तो भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे।
हाँ, थोड़े से पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। तो माइक्रोमीटर ने रीडिंग कुछ कम कर दी। दोबारा बोलता हूं, जब ये बैटरी थी तो सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे थे, तो करंट ज्यादा दिखाई दे रहा था। बैटरी हटा दी तो करंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। क्यों जीरो। कम क्यों हो गई? जीरो क्यों हो गई? कम इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे, और कम क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि सर स्कैटर हो गए ना। चार्ज है। तो कुछ स्कैटर्ड हो गए हैं। क्या मेरी बात समझ आई? यस। यस सर। अब आपके पास तो जीरो हो हाँ जाएगी ना? बोलो। जीरो क्यों हो जाएगा करंट? मैंने यूवी रेज डाली है, इलेक्ट्रॉन तो निकले होंगे, उसमें से कुछ स्कैटर कर गए, कुछ वहां पे एक्सेप्टर प्लेट पे पहुंच गए। यस सर। तो माइक्रो एमीटर ने रीडिंग कम दिखाई, जीरो थोड़ी दिखाई। क्या मेरी बात समझ आती है? यस सर। नमन, इज इट ओके? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे तो माइक्रो एमीटर की अंदर रीडिंग कम आई, लेकिन आई, ऐसा नहीं कि जीरो हो गई। ठीक है, चलो और बात करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, यूवी रेज भी हटा दी। नाउ व्हाट विल हैपन? जीरो हो जाएगी रीडिंग। माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? जीरो। हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? क्या हो जाएगी? जीरो। ये एक्सपेक्टेड आंसर है ना हमारा? यस सर। यस सर। लेकिन सर लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भी होंगे लेकिन। है, यूवी रेज हटा दी हमने। अब जब यूवी रेज हटा दी, बैटरी भी हटा दी, तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं तो एक्सेप्टर प्लेट तक पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं तो माइक्रोमीटर में रीडिंग जीरो आ जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। यस सर। यस सर। लेकिन अभी भी माइक्रोमीटर में थोड़ी सी रीडिंग दिखाई दी, माइन्यूट डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अब क्यों दिखाई दिया? आपने तो यूवी रेज भी बंद कर दी, आपने तो बैटरी भी बंद कर दी, अब क्यों दिखाई दिया? सर प्रोबेबली बिकॉज कंटेनर के अंदर रेज अभी भी थी, रिफ्लेक्ट नहीं होके नहीं, उसमें अभी भी। कुछ नहीं, रे अंदर कुछ नहीं था, कोई रे नहीं थी। हमने रे बंद कर दी, पूरी तरह से बंद कर दी, कोई रे नहीं है अंदर कंटेनर में। अब क्यों थोड़ा सा करंट दिखाई दिया? तब लिनार्ड और हॉलवाच ने ये बात देखी कि इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत कम है, नेग्लिजिबल, इतना छोटा सा है, और रूम टेम्परेचर पे भी वो थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं थोड़े थोड़े से। अगर मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, उसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टर प्लेट पे पहुंच गए, तो माइक्रोमीटर रीडिंग दे देगा या गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे देगा। वहां गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो रीडिंग दे देगा। क्या मेरी बात समझ आई? यस। अब मतलब अपने आप ही इजेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस हाँ, से। लेकिन वो बहुत कम रहे हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल। हाँ जी सर। सर तो मतलब पहले भी दे रहा होगा ये भी तो आपके पास दे। रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑल्दो बहुत कम निकलते हैं, बहुत ही माइन्यूट निकलते हैं, लेकिन निकलते तो हैं।
जीरो थोड़ी होते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? अब सोचो, अगर हॉलवाच और लिनार्ड जिद्दी हैं, वो चाहते हैं कि माइक्रो एमीटर में रीडिंग एग्जैक्टली जीरो आए, क्या ये पॉसिबल है? टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर कम कर देंगे, कितना कम? सूटेबल से कम कर देंगे। कितना कम? अगर आपके पास रूम टेम्परेचर भी हुआ तो भी निकलेगी बाहर। थ्रेशोल्ड 0 डिग्री फ्रीक्वेंसी करते हैं। मतलब ना पहुंचे। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 0 केल्विन पे नहीं निकलते। तो 0 केल्विन कर दें। 0 केल्विन मतलब हाँ -273 डिग्री सेल्सियस। वो तो सर आइडियल कंडीशन मतलब नहीं होगी। वो तो सर पॉसिबल ही नहीं है मतलब ना। राइट। सर अगर प्रेशर बढ़ा दे तो? हाँ, तो प्रेशर बढ़ाओ, जो मर्जी करो, अगर टेम्परेचर हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलने तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इनर्शिया बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर आप लगाओगे उसमें हल्की सी रीडिंग तो तब भी आ जाएगी। और लिनार्ड तो बहुत जिद्दी है, वो कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो करें क्या? गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आनी चाहिए, क्या करें? बोलो, सोचो 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 सर अगर सोचो। बैटरी की डायरेक्शन चेंज करके ऑन कर दे तो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही लिनार्ड ने भी। उन्होंने कहा कि अभी आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाते थे ना, अब एक काम करें, अब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा दें और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने से रोकें। लेकिन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ये पहुंच जाएंगे यहाँ पे, आराम से नहीं रुकेंगे ये। इसको रोकने के लिए आपकी बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा करना पड़ेगा, थोड़ी सी हाई बैटरी लगानी पड़ेगी, थोड़ी हाई बैटरी लगानी पड़ेगी। बेटा पहले मैंने याद करो आपसे कहा था कि बैटरी को यहाँ नेगेटिव लगाना, यहाँ पॉजिटिव लगाना, छोटी बैटरी लगाना। सर तो बड़ी दिखाने का पर्पस क्या था? सर छोटी आप एडजस्ट कर सकते हो, रियोस्टेट को आगे पीछे कर दो, बैटरी की पोलैरिटी, बैटरी की वोल्टेज अपने आप एडजस्ट होती रहेगी। मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आने से अगर रोकना है तो यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो जैसे ये नेगेटिव आएगा ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ ही नहीं पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ ही नहीं पाएंगे तो उसकी कंडीशन में यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग नहीं आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। स्टूडेंट्स, क्या मेरे को यहाँ पे सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना है तो तुम बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दो। यस सर। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव वाले पे पड़े तो वो तो वहीं रुक जाएंगे और वहां से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और वहीं पे हमारा वो है एमीटर, दोबारा तो वो बोलो, तो कर लेगा दोबारा, रीडिंग। अरे दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे तो ये तो वहीं रह जाएंगे ना। कहाँ कहाँ निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन? क्यों निकले? ऊपर बैटरी है नहीं और यहाँ पे यूवी रेज है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं पहले तो ये बताओ। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला क्यों? रूम टेम्परेचर की वजह से। हाँ तो निकला, तो अगर ये निकला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहते हैं और ये पॉजिटिव इसको बाहर आने नहीं दे रहे, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे ना। तो सर ये वहीं से वापस जाके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि वायर के अंदर से भाग जाए? ये अगर यहाँ वायर लगा दे तो? अरे वायर ही लगी हुई है, लेकिन वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन थोड़ी चलते हैं ऐसे, यहां से ऐसे हाँ थोड़ी जी। होता है। अब सोच, वो बैटरी जो आपने लगाई ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए,
इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहते हैं जो आप रिवर्स ऑर्डर में बैटरी लगाते हो ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ आया? और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाने लग जाए। हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग को ये मतलब समझ आया स्टॉपिंग पोटेंशियल का? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। तो हमने देखा लिनार्ड की कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से मुझे पता चला यूवी रेज आ रही थी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी को आप लिमिट से कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक गया। फिर उन्होंने देखा कि अगर मैं बैटरी को यहाँ पे रोक देता हूँ, बैटरी हटा देता हूँ, लेकिन यूवी रेज है तो इलेक्ट्रॉन फिर भी जा रहे हैं। माइक्रो एमीटर ने थोड़ी सी रीडिंग दिखाई लेकिन कम दिखाई। फिर मैंने क्या किया, वहां से यूवी रेज भी रोक दी। फिर मैंने देखा कि आज भी कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर की वजह से बाहर निकल तो रहे हैं। ठीक है सर, ओके। फिर हमने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया। बैटरी की पोलैरिटी उल्टी करते ही हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रुक गए अपनी जगह से। सर इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल को हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलो और बात सीखते हैं। लेट मी लर्न फ्यू मोर थिंग्स। नाउ लेट अस से मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा टॉय है, बहुत अच्छी सी कोई गेम है, ठीक है। आपके फ्रेंड ने कहा कि कैन यू गिव मी दैट गेम फॉर नेक्स्ट 2 days, मैं उसको जस्ट प्ले करना चाहता हूँ एंड उसके बाद आई विल गिव यू बैक। आपने कहा ठीक है सर, ओके ले लो। आपने अपने फ्रेंड को वो गेम दे दी, बट योर फ्रेंड लाइक दैट गेम अ लॉट। अब 2 दिन बीत गए तो उसने आपको रिटर्न नहीं करी आपकी गेम। 3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। आपने उससे कहा कि गेम रिटर्न करिए, उसने कहा कि आई एम एंजॉइंग दैट गेम, आई विल रिटर्न यू इन फ्यू डेज। अब 1 महीना बीत गया, दिया ही नहीं। अब आप थोड़े से फ्यूरियस हो गए, थोड़े से गुस्से में आ गए। यू नीड टू रिटर्न माई गेम बैक एंड वो कह रहे कि अभी नहीं, थोड़ा दिन और, गिव मी 10 more days। अब आपको और गुस्सा आया। अब एक दिन आप उसके घर चले गए, अब वो गेम आपको देना नहीं चाहता, उसने वो गेम अपने कबर्ड में छुपा दी। अब आप कह रहे हो कि गेम रिटर्न करो, वो कह रहे कि मैं नहीं कर रहा। आपने उसकी कबर्ड खोली, अपनी गेम उठाने लगे, वो आपकी ही गेम आपको वापस नहीं कर रहा, वो आपसे छीन रहा है वापस, और आप उससे वापस लेना चाहते हो। सो दैट मीन्स आपको एक हाई एनर्जी लगानी पड़ रही है अपनी ही दी हुई गेम को वापस करने लेने में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, जिस दिन आपने यूवी रेज लगाई थी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच गए थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूमरस, ठीक, और यहाँ इकट्ठे हो गए। अब आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां चले जाएं, वापस ए से सी पे वापस चले जाएं। तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? यहां से आप यूवी रेज भी लगा रहे हो और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे वापस चले जाए, ऐसे कैसे चले जाएंगे बताओ, कैसे चले जाएंगे बेटा? टॉपिक पोटेंशियल। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल ने तो ये था कि इलेक्ट्रॉन को आने से रोका था। मैं तो कह रहा हूं पहुंच गए, यहाँ पे आ गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस सी पे चाहिए, तो क्या सर करूं? अगर हम उस साइड पे यूवी रेज डाल दें तो नहीं, मेरे को यूवी रेज नहीं डालनी, सिर्फ बैटरी से खेलो। उससे पोटेंशियल बढ़ा देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पोलैरिटी चेंज इंक्रीज कर कर देंगे। देंगे बहुत। यस सर, अब इधर की तरफ नेगेटिव रखो और इधर की तरफ पॉजिटिव रखो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि यहां से यूवी रेज इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती है, लेकिन मेरा पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि
मैं यूवी रेज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दे रहा हूं और इलेक्ट्रॉन को वापस जाना ही पड़ेगा उधर। इसे कहते हैं रिवर्स पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रिवर्स पोटेंशियल। सर एक बार दोबारा समझाना। बेटा अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए और आप चाहते हो कि अभी यहाँ से यूवी रेस आ रही हैं और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन वापस इधर पहुंच जाए, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आपकी ये बैटरी इधर की तरफ नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके उधर भागेंगे, और इधर की तरफ पॉजिटिव हो, मतलब बैटरी की पोलैरिटी उल्टी हो जानी चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन वापस उधर भागेंगे, है ना? यस सर। इसीलिए यहाँ पे बड़ी बैटरी लगाई थी। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। चलो, ये था हॉलवाच एंड लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन। अब इसको देखते हैं। नाउ कौशव, कौशव, सर ये क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? बेटा क्वार्ट्ज ग्लास वो होता है जो यूवी रेज को एंट्री दे देता है, लेकिन उसको एस्केप आउट नहीं होने देता, मतलब उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। ओके सर। चलिए कौशव, नहीं, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, नहीं, इशिता, इशिता, Yes, sir. बेटा हॉलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस को पढ़िए। Yes, sir. During 1886-1902, Wilhelm Helmholtz and Philipp Lenard made a detailed study of photoelectric effect. Lenard observed that a potential difference is applied across the two metal plates enclosed in an evacuated tube. Current flows in the circuit when one plate, called emitter plate, enclosed in the evacuated tube, kept at negative potential, is exposed with ultraviolet radiation. आगे पढ़िए। Yes, sir. As soon as ultraviolet radiation falling on the emitter plate are stopped, the current flowing is also stopped. Thus, light falling on the surface of emitter causes current in the external circuit. From his observation, Holbrook concluded that negatively charged particles were ejected out from zinc plate under the action of ultraviolet radiation. Horvath and Lenard also observed that when ultraviolet light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all. When the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value, called the threshold frequency. This minimum frequency depends on the nature of the material of the emitter plate. ओके, चलिए बेटा, क्या ये बात समझ आई हमें? सारी बात समझ आई? Yes, बेटा sir. किसी को कोई डाउट? नहीं। सर प्रकृति, ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली यूवी रेज डालोगे तो फोटो एमिशन पॉसिबल ही नहीं है। और सर ये नेचर वाला पॉइंट कि मटेरियल के नेचर पर, लेकिन लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है चीज तो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीजियम के लिए अलग होगी, प्लेटिनियम के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके सर। ओके, प्रकृति, Yes, sir. बेटा एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़िए। Yes.
The apparatus consists of an evacuated glass or quartz tube which encloses a photosensitive plate C called emitter and a metal plate A called collector. A transport quartz window is sealed into the glass tube which permits ultraviolet radiation to pass through it and irradiate the photosensitive plate C. The electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A. When the collector plate A is positive with respect to the emitter plate C, the electrons are attracted to it and hence photoelectrons current is constituted. जी स्टूडेंट, क्या आपको ये सारी बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी ये ग्राफ जो फर्स्ट और सेकंड है ये अभी रुक जाइए, ये अभी थोड़ा सा दिक्कत देंगे अभी। नेक्स्ट साहित्य। Yes, sir. बेटा इसका जो पेज नंबर 5 है जहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज, ये पैराग्राफ पढ़े एक बार। When the potential is decreased, the current decreases but does not become zero at zero potential. This shows that even in the absence of accelerating potential, few photoelectrons manage to reach the plate A on their own due to their kinetic energy. When minimum negative potential V0 is applied to the plate A with respect to C, photoelectric current becomes zero at a particular value of negative potential V0 called stopping potential or cutoff potential. ओके बेटा, क्या ये बात समझ आई स्टॉपिंग पोटेंशियल? Yes, बच्चों sir. क्या? Yes, sir. चलिए, नमन, नमन Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। नमन पढ़ो। नमन, डू यू हैव नोट्स विद यू? चलिए ठीक। साहित्य, Yes, साहित्य sir. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। For a particular frequency of incident radiation, the minimum negative retarding potential V0 given to anode for which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential. In this condition, the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron with maximum kinetic energy Kmax. Photoelectric current is zero whenever no electron, even the fastest electrons, cannot reach the plate A. Hence, maximum kinetic energy is given as बस ये Kmax फॉर्मूला भी equals. छोड़ दो, अभी फॉर्मूला छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। So for the radiation, जी for the radiation of a given frequency and material of plate C, the value of stopping potential V0 is independent of the intensity of the incident radiation. It means the maximum kinetic energy of an emitted photoelectron depends on the light source and the emitter plate material, but it is independent of intensity of incident radiation. नाउ